In the previous lecture, we have seen that what is the solution and what is the syllabus of solution and what is the concentration, what is the concentration term. Now in this lecture, we are going to discuss about what is the solubility. So first we know that what is the solubility. The common definition are, as we know that the solubility, the maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent is called solubility at specific temperature and pressure. इसको सिंपल लैंग्वेज हम समझ सकते हैं, जैसे क्या है कि 20 ग्राम शुगर 20 ग्राम सॉल्ट 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व है at 25 डिग्री सेल्सियस and 1 atm pressure यानी यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 20 ग्राम सॉल्ट जो है 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व है, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो है हम 100 ग्राम वाटर में 20 ग्राम डिजोल्व कर सकते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर. इट मीन solubility of salt in water at 25 degree Celsius and 1 atm pressure is 20 gram. What is the unit of solubility? The general unit of solubility is gram per liter. And next we discuss solubility of solids in liquid. Solubility of solids in liquid. As you know that every solid does not dissolve in every liquid, that is every solute does not dissolve in every solvent. Generally polar solute dissolve in polar solvent and non-polar solute dissolve in non-polar solvent. What is the polar solute? Polar solute is salt and sugar. Salt and sugar dissolve in water, and non-polar solute you can take example naphthalene and anthracene. Naphthalene and anthracene dissolve in benzene. This is non-polar solute, non-polar solvent, polar solute and polar solvent. As we also know that what is the saturated solution and what is the unsaturated solution. When no more solute dissolve at a given temperature and pressure, the solution is called saturated solution. When more solute is dissolved at a given temperature and pressure, it is called unsaturated solution. And what is the effect of temperature and pressure on the solubility of solids in liquid? What is the effect of temperature? Effect of temperature, in the previous class 11 we have seen that what is the Lee-Jacquier principle. Lee-Jacquier's principle. Just here effect of temperature, just here follow the Lee-Jacquier's principle. Lee-Jacquier's principle, for exothermic reaction, if we increase the temperature, solubility decreases, and for endothermic process, if we increase the temperature, solubility increases. यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, मतलब एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन के लिए अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, एंड एंडोथर्मिक सॉल्यूशन के लिए अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड? वी नो दैट solids and liquids are highly incompressible. Solids and liquids are highly incompressible. So there is no effect. There is no effect of pressure on the solubility of solids in liquid. Okay. Now we are going to discuss about solubility of gases in liquid. इसके पहले हमने देखा that is solubility of solids in liquid.
ये हम देखने जा रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ एक लिक्विड है और इस पे एक पिस्टन लगाया गया है और उस पे वेट जो है W1 रखा गया है और इसमें कोई गैस जो है डिसॉल्व की गई है। इस वेसल में कोई लिक्विड है और इसमें कोई गैस डिसॉल्व की गई है और यहाँ पे जो प्रेशर लगाया गया है पिस्टन द्वारा, इसके ऊपर पिस्टन के ऊपर W1 प्रेशर रखा गया है, मतलब वेट रखा गया है W1 का। और दूसरा वेसल है और यहाँ पर भी कोई गैस, मतलब सेम गैस के लिए प्रोसेस है। यहाँ पे 3 वेट रखे गए हैं, W1, W2 एंड W3। एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि इसको हम सपोज कर ले A एंड इसको सपोज कर ले B। एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है कि B केस में गैसेस जो डिसॉल्व है, ऑब्जर्व किया गया है कि B केस में गैसेस डिसॉल्व इन लिक्विड इज मोर इन कंपैरिजन टू A। क्योंकि यहाँ पे देखो प्रेशर कितना लगाया गया है, W1, W2, W3, यानी पिस्टन के ऊपर प्रेशर रखा गया है W1, W2, W3 और यहाँ पर पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर रखा गया है केवल W1 रखा गया है। तो ये देखा गया है कि प्रेशर को इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इस पे एक जो है एक्सपेरिमेंटली स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट हेनरी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया और एक लॉ बनाया गया और हेनरी ने अपना एक लॉ दिया, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस ओवर द लिक्विड सरफेस। यानी किसी लिक्विड सरफेस के ऊपर पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा वो गैस उस लिक्विड में उतना ही ज्यादा डिसॉल्व होगी, यानी उस गैस की सॉल्युबिलिटी जो है उस लिक्विड में उतना ही ज्यादा होगी। तो दैट इज इनके आधार पे हेनरी ने अपना एक रूल दिया कि पार्शियल प्रेशर Henry's law, the solubility of gases in liquid are directly proportional to partial pressure of gases over the liquid surface। यानी गैसेस के लिक्विड सरफेस से ऊपर गैस का प्रेशर जितना ही ज्यादा होगा वो गैस लिक्विड में उतना ही ज्यादा डिसॉल्व होगी, यानी उस गैस की सॉल्युबिलिटी जो है उतना ही ज्यादा होगी। यानी बी केस में हमने देखा, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि बी केस में ए केस की अपेक्षा गैस की सॉल्युबिलिटी जो है ज्यादा है। तो इसको मतलब हेनरी ने अपने एक स्टेटमेंट से दिया है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द लिक्विड सरफेस। यानी सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, नॉट वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर of the gases over the liquid surface, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं और हम जानते भी हैं कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस ओवर द लिक्विड सरफेस। और इसको हम जैसे लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस एंड P इज इक्वल टू KX, where KX is a constant called Henry constant. The value of KX is different for different gases at different temperature. If you draw a graph between P and X for a gas that is partial pressure and this is mole fraction of gas, we get a straight line. चलो हमने देखा P is equal to Kx theta, Kx is a constant called Henry constant and the value of Kx is different from different gases at different temperature. From this equation we can say that
वैल्यू ऑफ kh इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जीटा, यानी जीटा kh की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो जीटा यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिक्रीज करेगा। kh की वैल्यू अगर इंक्रीज करती है, kh की वैल्यू अगर इंक्रीज करती है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिक्रीज करेगा, हेंस सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। अगर ऐसा है कि kh की वैल्यू अगर डिक्रीज करती है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इंक्रीज करेगा एंड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। इसको हम एक टेबल से समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक टेबल दिया है कि यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, these gases are dissolved in water. These gases are dissolved in water. इनका kh वैल्यू एट 293 केल्विन पे दिया गया है, 293 केल्विन पे दिया गया है, kh वैल्यू किलो बार में दिया है। तो हीलियम के लिए kh वैल्यू एट 293 केल्विन पे 144 किलोग्राम, 144 किलो बार, एंड हाइड्रोजन के लिए कितना दिया है 69, नाइट्रोजन के लिए 76, ऑक्सीजन के लिए 34, ऑक्सीजन के लिए 34। तो इस टेबल से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं kh की वैल्यू सबसे कम किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए। kh की वैल्यू सबसे कम किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए। इट मीन ऑक्सीजन जो है वाटर में सबसे ज्यादा डिसॉल्व है। फिर इसके बाद kh की वैल्यू इसके बाद किसका ज्यादा है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का 69 है। तो इसके बाद वाटर में जो और वाटर में हाइड्रोजन के बाद, वाटर में ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा डिसॉल्व होती है। फिर इसके बाद नाइट्रोजन का 76 होता है। तो नाइट्रोजन जो होता है हाइड्रोजन के बाद, नाइट्रोजन वो गैस होती है जो वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होती है। सबसे कम इन चारों गैसेस में सबसे कम हीलियम गैस वाटर में डिसॉल्व होती है। थैंक यू।